For accounts paper there is a trick comes lengthy, so you need to solve through a trick कि आपका कभी भी पेपर छूटे नहीं। जब भी कोई भी क्वेश्चन आए पहले आपको फॉर्मेट बनाना है प्रॉपरली, जो भी चीज़ पूछा गया है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी आपको उसमें बनाना है वो आप उसमें बनाओ। वर्किंग नोट्स भी बना दो, लिखना कुछ भी नहीं है अंदर। देन क्वेश्चन रीड करो, एडजस्टमेंट्स को पहले सॉल्व करो एंड देन जो बचा हुआ है उसको पोस्ट करते जाओ। आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, बट दिस शुड बी योर ट्रिक ताकि कोई भी पेपर छूटे नहीं एंड यू डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. So you will get an idea from this video. Do watch it till the end. Hello everyone, this is Prankaj and welcome back to my channel, The Life Baker. And if you are new to my channel, don't forget to click on the subscribe button and the bell button to get notified on my every upload. Today I have made this video on suggested paper analysis of accounts paper, which comes the lengthiest. Most of the time we are not being able to complete this paper 100%. I'll discuss how you should solve your paper, which will help in CA Foundation, CA Intermediate and CA Final also. Just for reference, I am taking suggested paper of CA Foundation level. In my previous videos, I discussed suggested paper analysis of law and BCR. For economics and maths BCK, we have multiple choice questions. So I've made a video on how to solve MCQ paper, which will help you with these two subjects. BCR and law is taken care of, and this is the last subject of CA Foundation. So basically all the 4 papers are taken care of. So let's get started with accounts suggested analysis. In accounts paper, you get 6 questions in total, out of which question number 1 is compulsory, and out of the remaining 5 you need to solve 4 questions. In this you get theory questions also and practical questions also. So we'll discuss one by one each and every question. So suppose in the first question it's given, state with reasons whether the following statements are true or false. For these questions you just need to write true, whether this and this is right or wrong, and the reasoning behind that. 2 marks each, so 1 mark for true or false and 1 mark for reasoning. In the second B part, define the following terms. All are of 1 mark, so 1 to 2 lines is sufficient for each and every point. So in subsection C part, you need to prepare BRS. So सबसे पहले check करो whether you need to make adjusted cash book or not. If yes, then make that and then BRS. Your approach should be first prepare both the formats. Empty एडजस्टेड कैश बुक थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली आप वो कर लो कि कितना स्पेस चाहिएगा, हाउ मच स्पेस यू नीड, एंड देन BRS ऑल्सो हाउ मच स्पेस यू नीड. मेक दिस फॉर्मेट एंड देन रीड वन बाय वन all the points given in the question and keep on posting it wherever it is needed. So you don't need to read question again and again. फर्स्ट पॉइंट रीड किया, जहाँ पे आपको उसको प्लेस करना वहाँ पे उसको प्लेस कर दिया. सेकंड पॉइंट रीड किया, जहाँ पे आपको प्लेस करना वहाँ पे आपने उसको प्लेस कर दिया. तो आपको बार बार यू डोंट नीड टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. रीड, पोस्ट, क्योंकि आपका फॉर्मेट बना हुआ है, आपको जहाँ पोस्ट करना है उसको पोस्ट कर दो. In question number 2, you need to make basically journal entries. You need to write journal entries for rectification of errors. 10 marks. So here make the format for journal entries, particulars, ledger folio, debit, credit, everything. You need to write the entry and narration is important. Okay. So please write complete format wise. Each and every point, first point read करो and journal entry post कर दो. Very easy to crack. In the next question subsection, you have to prepare truck account. So it is a depreciation question. Okay, so make the format of truck account, space छोड़ दो थोड़ा, and then working note. Okay, आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे वैसे आपको वर्किंग नोट्स भी बनाना है. ऐसे मत सॉल्व करो कि आपको बार बार क्वेश्चन रीड करना पड़ रहा है. फर्स्ट लाइन रीड करो, जहाँ पे आपको पोस्ट करना है वहाँ पे उसको पोस्ट करो. यू नीड टू मेक श्योर पेपर लेंदी आएगा. सो प्रॉपर एक साथ में फॉर्मेट बना दो. ट्रक अकाउंट, स्पेस छोड़ दो थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली, एंड देन वर्किंग नोट. आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा इफ़ यू साइमल्टेनियसली पोस्ट ऑल द पॉइंट्स while reading. In next question number 3, you need to make consignment account. So first of all, question का last point देखो, prepare the consignment account. So consignment account in the books of so and so. So ये नाम भी देना है, consignment to whatsoever place it is, consignment to Mumbai account, debit credit. ये format बनाया and then working note भी बना दिया. Space छोड़ दो थोड़ा 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 करके approximately. थोड़ा सा space आप एक्स्ट्रा भी space रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो space छोड़ा, आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया रीड करना,
एक एक पॉइंट को पोस्ट करते गए. That should be approach in all the questions of accounts. You just cannot afford to read the question again and again and again. Okay, so consignment question इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा. And then in the next question you need to make current account. So current account तो छोटा सा एक अकाउंट बनेगा, फॉर्मेट बनाया एंड देन पोस्ट करना स्टार्ट किया. देखो आपकी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है जर्नल एंट्रीज़ के, क्योंकि देखो हर में जर्नल एंट्रीज और लेजर हो रहा है, तो लेजर पोस्टिंग एंड जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत 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 ज़रूरी है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट. एंड अकाउंट्स में फॉर्मेट, वर्किंग नोट, एक एक लाइन पढ़ा, पोस्ट करते गए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव और क्वेश्चन एनी वन यू नीड टू अटेम्प्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्रीज़ है, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो फॉर द ईयर एंड दिस करके फॉर्मेट बनाया, एक एक पॉइंट पढ़ा एंड जर्नल एंट्रीज उसका पोस्ट कर दिया. So in the or part you need to make bills receivable and bills payable account. Okay, so calculate the average due date when the payment can be received or made. तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको जो इसमें बनाना है उसका फॉर्मेट बनाया, जैसे इसमें बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट. तो ये फॉर्मेट बनाओ, बिल डेट, टेन्योर, ड्यू डेट, हर चीज़ लिखा होना चाहिए. एंड यहाँ पे बेस डेट नहीं दिया हुआ है तो लेट अस टेक दिस एज बेस डेट. आपको जो भी एजम्पशन आप डालोगे वो आपको लिखना है, जो भी आपका वर्किंग नोट का पार्ट होगा वो आंसर का ही पार्ट होगा. तो जो आपको समझ में आता है वो आप उसमें मेंशन करना, टीचर उसी हिसाब से उसको चेक करेगी. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन. ओके, एक बार रीड करके देखो आपको क्या बनानी है. टू रिक्वायर टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग अमाउंट ड्यू टू लीगल एयर को कितना पैसा देना है वो आपको पीस का कैपिटल अकाउंट बनाना है. तो पी का कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड देन वर्किंग नोट बनाना है. तो मेन पार्ट है आंसर का वो कैपिटल अकाउंट एंड देन द वर्किंग नोट्स. बेसिकली फॉर्मेट बना के एक एक पॉइंट रीड करो एंड देन पोस्ट करना स्टार्ट करो. आपको वर्किंग नोट में उसको लिखना है तो वर्किंग नोट में लिखिए, आपको मेन आंसर का फॉर्म में लिखना है तो आपको मेन आंसर में उसको लिखना है. तो बेसिकली एक एक पॉइंट रीड करके आपको पोस्ट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बार बार क्वेश्चन को रीड करते करते करते, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे. एंड जो पार्ट कर लिया उसमें टिक कर दो. ओके, कि दिस इज टेकन केयर ऑफ. तो आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं. कोई भी योर एडजस्टमेंट्स एंड एनीथिंग वोंट बी मिस्ड आउट. सो प्लीज़ डू दैट. इन द नेक्स्ट बी क्वेश्चन आपको बनाना है प्रिपेयर हिज प्रैक्टिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट बनाना है. ओके, तो इसमें भी आपका सेम चीज़ है, फॉर्मेट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर. दिस टू फॉर्म्स द मेन. सबसे पहले आप एडजस्टमेंट को करना. हमेशा एडजस्टमेंट जब आप करोगे ना, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपके कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे मेन, ये बेसिकली इस अकाउंट के. ठीक है, टिक करना जो जो चीज़ हो गया. एडजस्टमेंट नहीं छूटना चाहिए. तो एडजस्टमेंट के साथ जो के साथ वो कनेक्टेड है वो कंप्लीट हो गया. तो जो रिमेनिंग है उसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, आपको सिर्फ पोस्ट करना. तो दैट शुड बी योर अप्रोच. कोई भी बड़ा क्वेश्चन आए 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, जिसमें आपको P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनाना है, पहले आप फॉर्मेट बना दो, अप्रॉक्सीमेट एरिया पकड़ लो. ऐसे नहीं कि पहले P&L बनाया, पूरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर बैलेंस शीट बनाया, पूरा क्वेश्चन पढ़ा. नेवर डू दिस, यू विल वेस्ट योर टाइम. तो प्लीज़ पहले ये सारा चीज़ एक साथ बना लो, बैलेंस शीट, P&L, ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम, जो भी आपको बनाना है उस क्वेश्चन में. एंड देन एडजस्टमेंट को पहले सॉल्व करो. एडजस्टमेंट के साथ कुछ पॉइंट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे. एंड देन जो रिमेनिंग है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको पोस्ट करो. यू विल नेवर मिस आउट ऑन एनी क्वेश्चन एंड एनीथिंग. पर पहले आपने ट्रेडिंग बनाया, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर कभी भी ये गलती मत करना. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज का वैल्यू निकालना है 5 मार्क का छोटा सा. तो सिंपल है, आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री बनाना है एंड जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करके इन्वेंट्री ऐसा निकालना है. इन द बी पार्ट दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट टोटल इनकम फॉर द ईयर एंड टोटल मनी रिसीव्ड, बैलेंस अगर दिया हुआ है तो इसमें आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम निकालना है. आपने निकाला, जो भी चीज़ एडवांस फॉर कस्टमर्स आपको निकालना है. जो भी आपको आंसर निकालने के लिए जिस तरीके से भी सॉल्व करना है उसको सॉल्व करना और आपका आंसर निकल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स NPO. वेरी वेरी मेजर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. 10 मार्क का आता है. 10 मार्क यू कैन ईजिली स्कोर, बट यू नीड टू हैव द ट्रिक. एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पहले सॉल्व करना है, उससे वो यू नीड टू मेक द फॉर्मेट ऑफ दैट. जैसे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, बैलेंस शीट, देन वर्किंग नोट्स चालू होगा. तो पहले फॉर्मेट बनाया दोनों, बैलेंस शीट एंड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एंड देन ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके सारे पॉइंट्स को सॉल्व करो.
ये सारे पॉइंट्स को आप जब सॉल्व करोगे उसके बाद आपका जो पॉइंट्स रहेगा उसको आप कंप्लीट कर लेना। बैलेंस शीट और रिसिप्शन पे साइमल्टेनियसली बनते जाएगा, कुछ भी नहीं, एक 1 बाय 1 साइमल्टेनियसली सारी जगह में पोस्ट होंगे। जहाँ पे जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो जहाँ जहाँ इसको पोस्ट करना वहाँ उसको पोस्ट कर दो। बैलेंस शीट, रिसिप्शन, पेमेंट्स अकाउंट, जहाँ पे भी आपको उसको पोस्ट करना है, तो इस कारण साइमल्टेनियसली बनेगा और ये फॉर्मेट आपको बनाना है। तो जैसे रिसिप्शन, पेमेंट्स अकाउंट और बैलेंस शीट इसमें बना, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना बिकॉज कैश का बैलेंस नहीं दिया हुआ था, तो ये 3 चीज़ बनेगा एंड देन वर्किंग नोट। तो जहाँ जो पोस्ट करना है साइमल्टेनियसली तीनों जगह में पोस्ट होगा, 1 बाय 1 कुछ भी नहीं होगा। अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, 1 बाय 1 कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ द क्वेश्चन ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो क्वेश्चन पढ़ो, शेयर एप्लीकेशन का है, वेरी इजी टू सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ो एंड देन कीप ऑन पोस्टिंग। नरेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट डिस्कस द रूल्स इफ दिस नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। थ्योरी क्वेश्चन है, जो भी रूल्स है 4-5 रूल्स है उसको आप पॉइंट वाइज आंसर करना। फॉर 5 points 5 marks you will get. So basically your approach for account should be simultaneously solve your questions whatsoever is asked in the question. If you keep on reading again and again the questions, you will waste your time. जैसे जैसे एक एक एडजस्टमेंट्स क्लियर होता है उसमें टिक करते जाओ। यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विद दैट, ओके। यू विल नेवर मिस योर क्वेश्चन। एंड 2-3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना घर पे टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में अगर आपका छूट जाए तो आप पैनिक करोगे, इसलिए आई डोंट वांट यू टू पैनिक। पेपर कम्स इजी इफ़ यू नो द ट्रिक बिहाइंड इट. So I really hope this video will help you to get an idea of what should be your approach when you solve accounts paper. Okay, thank you so much. Do subscribe to my channel for informative videos, and if you like this video, share with your friends and subscribe it. Thank you so much.